kinds of central services and SSA examinations, etc. So the faculty from Delhi will be more useful because they will be providing you the latest knowledge regarding the changed syllabus of ICS. As he has mentioned, you must be knowing that the syllabus for ICS examinations has been changed recently. The pattern of the papers has been changed. In the preliminary examination, of course, there is one compulsory paper and another paper is optional. But in the mains examination, the entire pattern through which we pass the examinations has changed. And now you will have 4 papers for general studies based on different kinds of subjects. For example, India's history, India's constitution, international relations, Indian economy, international economy, administration, aptitude tests, and so many things. And then 2 main subjects which will be optional subjects having different marks of the optional subjects, say about 300 or so. And then there will be 2 more papers of Hindi and English which will be only sufficient for qualifying. If you qualify, then it is alright. But if you get 4 marks, it is also very good. Then 1 paper of essay also. And then we also face that, and you will be also facing an interview of about 375 marks. 275 marks. So that will be assessing your communication skills and knowledge of current affairs and knowledge of different subjects and whatnot. आप चाहेंगे तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी. There is no problem. Why ICS? Because ICS is the premier service of the country. Everyone would like to enter into the premier service of the country. I will further come when you will see that it is a premier service, of course, but it has its own challenges and problems. ICS में पास होना, ICS में पास होकर अच्छे मार्क्स लेना, उसके बाद IAS बन जाना, that is not sufficient. After entering into the examinations, after passing, after getting into the training at Mussoorie and in the states and district training, then you start facing the challenges. अभी तो शुरू में लगेगा IAS बन गया बहुत हो गया, पहली बात तो बन नहीं सकते. There is a fierce competition और लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं. प्रीलिम्स में कई सारे रह जाते हैं. कोई फॉर्मूला बना हुआ है जिसमें 10% को पास करते होंगे, 10 को भी नहीं करते हैं. इट इज कमेंसुरेट टू दी सीट्स ऑफ दी सर्विसेज. कभी 700 पोस्ट निकलती हैं. IAS की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. IAS की तो 100 से 120-25 के बीच में निकलती हैं. IPS की फिर 100-125 निकलती हैं. IFS की 30-25, 15-40 निकलती हैं. फिर कई तरह की सर्विस जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, फिर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, फिर डिफेंस अकाउंट सर्विस एंड सो मेनी. About say around 10 or more than that central services are so-called class 1 services. और इसके साथ साथ आपकी IAS, Indian Foreign Service, Indian Police Service and Indian Revenue Service. These are the 4 premier services again. And now there is a dichotomy. When you will pass the examination, then you will see कि आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट इसके पहले आपसे ऑप्शन मांग लिए जाते हैं. What would you like to prefer first? Whether it will be IFS or IAS? I was a candidate of 1981 examination. पहले भी दिया था मैंने. I came into IRS but did not join. I appeared in RAS and passed the RAS main examinations. Thus got selected. Medicals were had appointment order issues. I did not join because I was teaching in the Rajasthan University for some time. So I thought it is better to continue in the university to teach and then if possible go in the main IAS. Otherwise one has to take a risk. So that apart, जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनके आप बैठेंगे उसके एग्जाम्स में, फिर आपको चांसेस मिलेंगे और चांसेस एज के हिसाब से होंगे. 4 चांसेस जनरल को होते हैं और इसके अलावा 33 इयर्स की एज तक के चांसेस SC, ST और OBC एंड विमेन और इन सबको. बट दैट अपार्ट competition is
Why fierce? Because every year the number of candidates is increasing, number one, and number two, the knowledge of the previous students is getting older or traditional. जैसे आज से 3 साल पहले जिसने परीक्षा दी थी और उसके 2 साल या 3 साल बाद जो एग्जाम देगा उसके नॉलेज में बहुत फर्क हो जाएगा। तो 3 साल पहले वाला अपने आगे के 3 साल में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो गए हैं उसकी तो वो तैयारी करेगा। दूसरा एक फ्रेशर जो आएगा, ही विल बी ए बेटर फर्टाइल माइंड पर्सन। कई बार आप देखते हैं ऐसा होता है कि सिंपली ग्रेजुएशन करके कई लोग आईएएस में क्रैकिंग कर जाते हैं और वो 22 साल की उम्र में आईएएस बन जाते हैं। और कई लोग 26 की बनते हैं, कई 28 की बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कई 33 में बनते हैं। तो 33 और 23 वाले में कितना फर्क हुआ? एक ही बैच में 33 साल की उम्र वाला, उसी बैच में 23 साल की उम्र वाला, और उसी में संभव हो तो कई बार 21 साल की उम्र वाला। जब वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी बनते हैं, तो फिर फर्क ये हो जाता है 33 वाला रिटायर हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी बन ही नहीं सकता। राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी बन ही नहीं सकता, पहले रिटायर हो जाता है इन व्यू ऑफ हिज एज। 60 में तो रिटायर होना ही होता है। अब ये बात अलग है अभी भारत सरकार 60 की 62 कर दे कि नहीं कर दे। पहले 58 थी, पहले 55 थी। पंडित नेहरू ने चाइना वार के टाइम 55 से 58 कर दी। इसके बाद 1998 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने 58 से 60 कर दी और अब वन नेवर नो 60 रहेगी या बढ़ेगी, बट एट द मोमेंट दिस इज 1 21 इज द मिनिमम एज, ये आपको पता ही है। अब मैं उसकी बात कर रहा था, भाई आईसीएस, बिकॉज वैसे तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके निकलता है एवरीवन इज एलिजिबल फॉर आईएएस। तो उसमें व्हेन ही इज अनएम्प्लॉयड, he is not getting any kind of employment, so it is open for him to appear for the ICS examination. तो एक तो ये है। दूसरा थोड़ा सा ह्यूमर के हिसाब से, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो शादी होने तक आईसीएस का एग्जाम देता रहता है या देती रहती है। उनको पूछते हैं क्या कर रहा है लड़का, साहब आईसीएस का एग्जाम दे रहा है। वो नहीं कहते पास हो गया, पास होने वाला, पास हो गया कि नहीं हो गया तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वो पूछते हैं क्या कर रहा है लड़का, आईसीएस की तैयारी कर रहा है। तैयारी बहुत बड़ी चीज होती है, कई साल तक होती रहती है। इसलिए आईसीएस की तैयारी कर रहा है या आईसीएस की तैयारी कर ली है, एक तो ये रहता है। दिस इज वन। सेकंड डायमेंशन इज, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे लोग एक बार में ही आईसीएस मेन में या आईएएस में आना जरूरी नहीं है, डिफिकल्ट। बिकॉज 100 लोग ही आएंगे, 110 लोग ही आएंगे, उसमें भी रिजर्वेशन होगा। तो इसलिए बाकी लोग जो दूसरी अलाइड सर्विसेज है उसमें आएंगे, दोज आर आल्सो गुड, वन शुड ज्वाइन एंड देन लेटर ऑन ट्राई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, यूपीएससी अलाउ करती है, तो उसमें आजकल ये कहते हैं छुट्टी लेके आप एग्जाम दे सकते हो, ट्रेनिंग में आके नहीं दे सकते। क्योंकि ट्रेनिंग में आके हम लोग तो दे सकते थे, लेकिन अब शायद बैन किया है, क्योंकि ट्रेनिंग में आके अगर आप एग्जाम दोगे तो दूसरों की ट्रेनिंग और खराब करोगे, आप पढ़ाई में लगे रहोगे। तो कहते हैं छुट्टी लेके पढ़ाई करो, एक्सटेंशन ले लो इफ पॉसिबल। तो ये सब चीजें होती हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात है, आप में से बहुत सारे लोग पहले अपियर होंगे, अब अपियर हो रहे होंगे, आपने सिलेबस पढ़ा होगा, उस सब पे मैं नहीं जा रहा। बट इसमें जो पहले ऑल सब्जेक्ट्स आर अलाउड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट, मेडिकल के सारे सब्जेक्ट, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, एंड देयर वर अबाउट 45-50 सब्जेक्ट्स, माइट बी मोर देन दैट। अब उसको रिड्यूस करके ऑप्शनल की नंबर भी कम कर दी गई है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट ज़्यादा रखे गए हैं और उनमें से यू कैन चूज 2 सब्जेक्ट्स। तो इसलिए बेसिकली पहले तो गवर्नमेंट का ऑप्शन एक ही हो गया, एक ऑप्शनल हो गया और 4 कंपल्सरी हो गए जीएस के, और इंग्लिश हिंदी हो गई और ऐसे हो गया। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये विचार भी था कि 12th के बाद में लड़कों को सेलेक्ट करो, ये बात चली थी पहले। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी सजेस्ट किया था कि आप 12th क्लास के बाद स्टूडेंट्स को 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करिए, जैसे चाइना में करते हैं। चाइना में ये करते हैं कि 10th के बाद में ही एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद में पता कर लेते हैं कि लड़का लड़की चाहता क्या है या उसका दिमाग क्या कहता है। वो इंजीनियर बन सकता है तो घर वालों के कहने से इंजीनियर नहीं बनेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट से बनेगा। लड़का इंजीनियर बन सकता है, लड़की इंजीनियर बन सकती है, तो उसको डॉक्टर बना के मेंढक काटने के लिए जबरदस्ती तैयार नहीं करते घर वालों की तरह कि डोनेशन दे देंगे, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर होना चाहिए, इसका मतलब मैं फिल्म एक्टर हूँ तो मेरी बेटी फिल्म एक्टर होनी चाहिए। वो एक अलग बात है, होते हैं फिल्म एक्टिंग में तो होते हैं, लेकिन इसमें मुश्किल होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई आप तैयारी करते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हो और उसके बाद में आफ्टर दी 12th क्लास सब स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड और उनको फिर आगे 4-5 साल की ट्रेनिंग दी जाए एंड मेक देम गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स बाय ए रिगरस ट्रेनिंग फॉर 4-5 इयर्स। वो फॉर्मूला अभी लागू नहीं हो पाया, बट दैट वाज आल्सो अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट स्टिल आईएएस क्योंकि प्रीमियर सर्विस है तो 2-3 चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं।
एक तो ये होता है कि हर स्टूडेंट ये देखता है कि जब तक इसमें आ नहीं जाए, जब तक कोई नौकरी ज्वाइन कर लो, जिस किसी में आ जाए। वो बात भी सही है, अनएम्प्लॉयड है तो बैंक में आ गया, एलडीसी बन गया तो भी आईएएस का एग्जाम देगा, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया तो भी आईएएस का एग्जाम देगा, अगर आरएएस बन गया तो बैंक तभी आईएएस का एग्जाम देगा, अगर तहसीलदार बन गया तो भी देगा। दैट मीन्स up to the age limit which allows you to appear in the examination and up to the chances which are allowed to you in the IAS, you should and you can appear. If you can appear, you should appear. क्योंकि आप एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है अपने यहाँ पे और एजुकेटेड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से एवरीवन थिंक्स व्हाट शुड वी डू। तो जहां तक संभव हो कोई भी जॉब हाथ में ले लो और उसके बाद में जिसकी आपको एस्पिरेशन है उसकी तैयारी करो। So we aspire and it is always better you aspire for the best. हर आदमी यही करता है, aspire for the best and get ready for the worst. क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, चूक हो जाती है, जिसको कहते हैं ना कि एलडीसी में सिलेक्शन हुआ, उसने कहा जी एलडीसी खाएगा, मैं तो सीधे ही कलेक्टर ही बनूंगा। तो सीधे कलेक्टर बनने से अच्छा है, कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं एलडीसी में तो हुआ तो उसको ज्वाइन कर लो, उसके बाद में कलेक्टर बन जाएंगे। एलडीसी से कलेक्टर बनना आसान है, एलडीसी की नौकरी छोड़ने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता, कभी छोड़ सकते हो। You resign and if you appear in the IAS and get selected, then join. तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज ये है, you should prepare for the best examination, for the highest examination with vigor and strong will. जो पहली चीज है वो ये है कि आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जैसे हम लोगों का था। मैं तो रूरल बैकग्राउंड से निकला था और हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई होती थी, लेकिन फिर इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया, तैयारी की उसकी, तो दैट इज समथिंग एल्स। बट रूरल बैकग्राउंड से निकलने वाले बहुत सारे लड़के लड़कियां अभी भी आईएएस में क्रैक करते हैं, आईसीएस में क्रैक करते हैं, बिकॉज दे आर कंसंट्रेटेड। उनका एक लक्ष्य होता है, जैसे अर्जुन का था, जैसे मछली का था ना, मछली की आंख वाली स्टोरी जो महाभारत में आती है, उसमें मछली की आंख को देखना है, बाकी आसपास में कुछ नहीं दिखेगा आपको, जो कुछ साइड में दिखता है उसको देखना नहीं है, केवल उसकी आंख को देखना है और उसमें नीचे से ऊपर उल्टे तरीके से बाण चलाना है। नीचे देखते हैं और ऊपर बाण चलाते हैं और बाण चला के मछली की आंख को भेज देते हैं। दैट इज दी टारगेटिंग। अगर आप टारगेटिंग करोगे तो आईएएस में लड़के ही तो आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, भारत के ही आते हैं, विदेश से आ नहीं सकते। अपन ये नहीं कर सकते साहब मल्टीनेशनल कंपनी का एक लड़का था अमेरिका का, वो आ गया आईएएस में, वो तो आ ही नहीं सकता। इंडियन सिटीजन होना पहली कंडीशन है, चाहे वो फॉरेन सर्विस में रहने वाले किसी अफसर का लड़का वो बैठ सकता है, उसकी लड़की बैठ सकती है, बट होना चाहिए इंडियन। तो इसलिए हर साल इंडियंस ही आते हैं, तो आते तो लड़के लड़के हैं और तो कोई आएगा नहीं। अब ये बात अलग है मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे अपने को उसमें नहीं जाना अभी ज्यादा डिटेल में कि मैरिड ज्यादा आते हैं अनमैरिड ज्यादा आते हैं, वहां जाके शादी करते हैं, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना आपको। आपने तो ये देखना है कि आईसीएस की तैयारी करनी और तैयारी करके उसमें पास होना, और पहली बार नहीं होता, दूसरी बार होना, दूसरी बार नहीं होना तो तीसरी बार होना। बिकॉज अभी हमारे यहाँ से आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल्स ऑल्सो। मैं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में सीएमडी था राजस्थान में, तो हमारे साथ एक ऑफिसर थे, उनकी लड़की की 3rd पोजीशन आई है अभी इस साल आईएएस में। फिर उसका इंटरव्यू आया है, मैंने उसके फादर से भी बात करी, लड़की से बात नहीं हो पाई थी। ही सेड कि साहब मैं उसको आपके पास ला के आपसे मिलाऊंगा कि वो आईएएस की ट्रेनिंग करे, जब क्या करना चाहिए उसको। देन आई आस्क्ड क्या किया उसने, तो आई थॉट कि उसने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा बहुत बड़ा, तो ही सेड सिंपली बायोटेक्नोलॉजी बीएससी है। ये जरूर है, आईआईटीएम से एमबीए कर लिया उसने, और इसके बाद 3 बार आईएएस का एग्जाम दिया, एक बार तो पास ही नहीं हो पाई, दूसरी बार पास हुई तो मेंस में निकल गई बट इंटरव्यू में रह गई, और तीसरी बार सीधे ही 3rd पोजीशन पे आ गई। तो दिस इज अगेन ए मैटर ऑफ चांस इन मैनी वेज। आपके पेपर कैसे आते हैं, आपने तैयारी कैसी करी है, आपकी तैयारी में से क्वेश्चन कितने क्लिक कर गए, प्रीलिम्स में आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनको हैंडल तो करना ही था, जब तो आप प्रीलिम्स से पास हो गए, मेन में आए, और मेन से निकलने के बाद में देन व्हाट यू हैव डन दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बोथ। सब्जेक्टिविटी इन द सेंस कि कई बार ऐसा भी होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट लोग एक बार नंबर नहीं आता, देखते हैं यार तो बहुत डिफिकल्ट था, छोड़ो उसको, दूसरा चीज कर लो, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएशन में आपके 3 सब्जेक्ट रह चुके होते हैं, तो फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी लिटरेचर है और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, यू स्विच ओवर टू अनदर सब्जेक्ट। और कई लोग स्विच ओवर नहीं करते हैं तो अगले साल और ज्यादा तैयारी करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। हमने नहीं करी थी कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिना ज्वाइन किए आ गए थे, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, पहले होती भी नहीं थी। जयपुर में तो आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थी, आईएएस की सर्विस का नाम भी बहुत कम ही लोग जानते थे, आईएएस किसको बोलते हैं, फुल फॉर्म नहीं मालूम था लोगों को। जयपुर में मालूम होगा सर, हमारे जैसे जगहों पे तो लोग समझते ही नहीं थे, यही समझते थे कलेक्टर होता है तो पता नहीं कहाँ से आते हैं, हमारे वाले नहीं बन सकते। वो ये मान के चलते थे हमारे वाले पटवारी बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा मास्टर बन सकते हैं।
तो जब आप उसको तोड़ के सारी सिचुएशन को और IAS मेन में आ गए तो लोगों को बड़ा कुतूहल होता है कि ये क्या क्या कौन सा आदमी है, जरा देखें सही को। क्योंकि हर साल आई एम अगेन टेलिंग यू 120 करोड़ में से 100 बनते हैं और कुल मिला के 6-7 हजार हैं सारे भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में मिला के। राजस्थान में 260-70 है कुल मिला के, जिसमें कई पोस्टें खाली पड़ी हैं और फिर किसी स्टेट में 300 है, किसी में 200 है, किसी में 250 है। यूपी बड़ा स्टेट है, वहाँ ज्यादा है क्योंकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है। राजस्थान में 33 जिले हैं, यूपी में 67-70 जिले हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें हर साल 100-120 लोग आते हैं, तो उसकी वजह से प्रीमियर सर्विस तो है। इसके चैलेंजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या हैं, बट स्टिल एवरीवन एस्पायर्स फॉर इट एंड दैट इज व्हाई इसमें हर तरह के वॉक ऑफ सब्जेक्ट्स के, हर तरह के स्पेशलाइजेशन के लोग जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पहले डॉक्टर, और उनको कहो भाई आप डॉक्टरी करो, भारत में वैसे ही डॉक्टरों की बहुत कमी है, तो फिर आप IAS उठाए के लिए जा रहे हो, आप पे खर्चा तो सरकार